Good day and welcome to the Q2 and H1 FY26 results conference call of Praveg Limited, hosted by Kiran Advisors Private Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Parth Acharya from Kiran Advisors Private Limited. Thank you, and over to you, sir. Thank you. On behalf of Kiran Advisors, I welcome you all to the conference call of Praveg Limited. From the management team, we have Mr. Vishnu Patel, Chairman, and Ms. Bijal Parekh, Finance Director. With that, now hand over the call to Ms. Bijal Parekh. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us today. It is a pleasure to connect with all our investors, analysts, and stakeholders. At Praveg Limited, our focus has always been to create meaningful, nature-led, eco-responsible luxury experiences for our guests. Our resorts are located in culturally and ecologically important destinations, and we continue to build our presence in a thoughtful and responsible manner. Alongside our hospitality business, our events and destination management capabilities remain a strong pillar of our overall strategy. The first half of financial year 26 has been a period of continued expansion and operational progress for Praveg. We now operate more than 825 rooms across 17 resorts and 1 hotel. This growth in scale reflects the work done over the past few quarters to strengthen our portfolio, enter new locations, and bring new experiences to the market. During the quarter, our hospitality and event segment contributed rupees 26.29 crores and the advertising segment contributed rupees 11.21 crores. We also added significant operational milestones in H1 financial year 26. We received the letter of award for World Lion Day 2025, which reinforced our long-standing presence in premium government event management. We also officially commenced operations at Praveg Adalash Theme Park on 25th September 2025. This property marks an important addition to our experiential and event-driven assets and positions us strongly in the premium event and entertainment category. The strength of our operational footprint and the expansion of our room inventory continue to create a solid foundation for future growth. Let me now take you through our financial performance for H1 financial year 26. On a consolidated basis, total income grew by 28.94% to 77.71 crores. This growth has been supported by continued expansion of our hospitality portfolio and steady performance in the events and advertisement segment. Consolidated EBITDA for H1 financial year 26 stood at rupees 10.17 crores. The company reported a consolidated net loss of rupees 14.97 crores. Margins were impacted during the first half due to higher operating costs at newly launched properties, along with the temporary closure of our 4 seasonal resorts during Q2 and owing to adverse weather conditions. These resorts and new properties require initial ramp-up investment before they stabilize, and this is a normal phase in hospitality operations. Profitability was also affected by fixed lease commitments payable to the government under PPP model. On a standalone basis, total income stood at rupees 56.55 crores. EBITDA for H1 financial 26 was 3.72 crores and the standalone net loss was rupees 16.71 crores after accounting for Ind AS 116 adjustments. Depreciation for the half year was rupees 15.98 crores, which reflects the larger operating base created through recent expansions. While the first half showed cost pressures, we remain optimistic about the outlook for the rest of the year. The second half is traditionally stronger for the Indian tourism and hospitality sector. Travel typically picks up from October onwards due to the festive season, the winter holiday period, higher leisure travel, destination weddings, and corporate events. This trend is seen consistently across the industry and supported by broader travel and hotel occupancy data. With our seasonal properties reopening,
and our newer properties gaining traction, we expect healthier operating leverage and an improvement in profitability during the second half. Our long-term strategy focuses on disciplined expansion, strengthening our eco-luxury positioning, and enhancing operational efficiency. With a growing presence across high-potential destinations and an expanding portfolio of unique experiences, we believe Praveg is well placed to capture the rising demand for experiential and sustainable travel in India. Before closing, I would like to thank all our investors, partners, employees, and guests for their continued support. Your trust motivates us to keep improving, keep innovating, and keep building Praveg into a leading name in eco-responsible luxury hospitality. Thank you once again for joining us today. We are now happy to take your questions. Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touch-tone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question comes from the line of Mohit Jain from DR Choksey Finserv Private Limited. Please go ahead. Hi, ma'am. Hi, sir. Good afternoon. I hope you can hear me. Yes, please go ahead, Vishnu. Okay. Yes. My first question, ma'am, you've written on the press release that there were a few fixed PPP lease commitments with the government, which continued even in low occupancy months. So, I'm sorry to interrupt, Mohit. Could you be a little louder, please? Can you hear me now? Yes. Hello? Yes. I was saying the fixed PPP lease commitments with the government continues even in the low occupancy months. So are you renegotiating any of these terms, especially for properties where, seasonal volatility is higher? Hello? Sir, please go ahead. Just carry the voice. Hello, Vishnu sir, can you hear us? या मेरे को आवाज थोड़ा कम आ रहा है, जरा क्लैरिटी नजदीक से बोले तो. क्या मैं रिपीट करूं क्वेश्चन सर? या बोलिए. हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फिक्स्ड पीपीपी लीज कमिटमेंट्स थे गवर्नमेंट के साथ जो कि कंटिन्यू हुए इवन इन लो ऑक्यूपेंसी मंथ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि हम क्या नेगोशिएट कर रहे हैं क्या ये टर्म्स, स्पेशली वो प्रॉपर्टीज के लिए जो सीजनली वॉलेटिलिटी बहुत हायर है? मैं आपको बताऊं. या आई अंडरस्टूड योर पॉइंट. बेसिकली जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, खास करके गवर्नमेंट जो पीपीपी प्रॉपर्टी है, इसमें टेंडरिंग होता है और टेंडरिंग ऑलवेज 5 ईयर 7 ईयर्स के टर्म्स के हिसाब से होता है और उसके हिसाब से रेंट हमने फिजिबिलिटी के हिसाब से रेंटिंग उसका जो टर्म्स होता है उसका पेमेंट होता है. गवर्नमेंट को हम एक भी प्रॉपर्टी शेयरिंग बेसिस पे हम नहीं चला रहे हैं और गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि शेयरिंग बेस पे हमारे रेवेन्यू ऑडिट और सब हो और वो लोग शेयरिंग मांगे. ऐसी कंडीशन नॉर्मली कोई भी टेंडर में हमारे नहीं है. तो जो भी रेंट है वो फिक्स रेंट है. आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि रेंट Q1 हो, Q2, 3, 4 सब में एक ही इक्वल रेंट आता है. तो सीजनल इफेक्ट बुक्स की बॉटम लाइन पे डेफिनेटली इफेक्ट एक केस में होती है. खास करके जो प्रोजेक्ट हमारे सीजनल वेरिएशन वाले हैं और जहां सिटी मेट्रो में हम नहीं है और जहां एक्सपीरियंस के हिसाब से है, वहां उसका इफेक्ट आपको Q2 में थोड़ा ज्यादातर हर साल देखने मिलता है. तो वो रहेगा. रहा सवाल रेंटिंग नेगोशिएशन का, गवर्नमेंट इज द ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती है बिडिंग प्रोसेस, इसमें नेगोशिएशन का नहीं होता है. बट इफ देयर इज एनी इश्यू रिलेटेड टू एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई प्रॉब्लम है वहाँ या कुछ स्ट्राइक है, ऐसे कोई केस में अगर कोई रिसोर्स बंद रहता है तो वो केस में हम फोर्स मेजर में मांग सकते हैं. तो ऐसी कोई इवेंट नहीं है तो हम नहीं मांग सकते हैं. इन शॉर्ट वी कांट नेगोशिएट इट, बट व्हेन द टेंडर अगेन कम automatically that value will be again reset in terms of the market feasibility and market competition. Okay, sir. And sir, my second question is, sir, ये जो प्रावेग
इनिशिएटिव जो हमारा है Yes, सर, yes. इसमें डू यू एक्सपेक्ट इट टू बी मार्जिन अक्रेटिव पहले साल से एंड मतलब कैन यू गिव अस सम फिगर ऑन व्हेन डू यू एक्सपेक्ट ब्रेक इवन टारगेटेड फर्स्ट ईयर रेवेन्यू फ्रॉम इट एटसेट्रा एटसेट्रा? यस, मैं आपको बताऊं, ये जो प्रवेग का जो अभी डीजल बैन ने इंट्रोड्यूस किया कि इतनी रूम्स है, रूम के अलावा कुछ ज्यादा उसके अलावा हमारा जो प्रवेग का पोर्टफोलियो वो काफी वास्ट है. एक तो आपको मैंने बताया कि एडवर्टाइजिंग में से हमारा काफी रेवेन्यू स्टार्ट हुआ है. वी हैव एक्वायर्ड वीकेंड डिजाइन कंपनी एंड वी आर इन एक्सपांशन मोड इन दैट कंपनी एंड वी हैव शोन द रेवेन्यू इन H1 ऑल्सो. सेम वे एग्जीबिशन इवेंट्स में हमारी 1.5-2 साल जो आपको पता होगा, शायद अगला कॉन कॉल लिया हो तो 1.5-2 साल से हम एग्जीबिशन इवेंट को हमने कॉम्प्रोमाइज किया था ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट एंड रिसोर्ट. इको फ्रेंडली जो रिसोर्ट बनाना है वो प्रवेग की इन हाउस टीम है. इन हाउस आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर एंड इन हाउस डेवलपमेंट जो टीम है वो उसको वी हैव शिफ्टेड टू डेवलपमेंट ऑफ होटल एंड रिसोर्ट्स. दैट्स व्हाई वी हैव कॉम्प्रोमाइज द बिजनेस ऑफ एग्जीबिशन एंड इवेंट्स. इन दैट you find since last 2 announcement is done, we have again recaptured that business and started on that line. The business earlier before 2020 or 21, which was 50 crore, 70, 80 crore above, which is almost came to 10 crore rupees. So now again we are regaining that portfolio and we have built up team accordingly and we have redesigned and reshaped our team from development team as well as exhibition events team. So we are recapturing that portfolio also. Now I come to our Adalaj point. Adalaj, Lakshdeep, 2 property which we are going to inaugurate, 100 room in Thinakara North and 100 room Thinakara South. Out of that, 100 and 100, 200 room is a special property of India, basically. It's not only hotels or resorts. It's beyond that. Here they have all, आपको मिलेगी सब activity, water sport, water activity, cruise, yacht, as well as experience, boating. बहुत कुछ हमने वहाँ प्लान किया है और वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है बीच पर जहाँ वेडिंग की काफी कुछ बड़ी पोटेंशियल है, जहाँ हम 200 रूम वाले वेडिंग, 250 रूम के वेडिंग भी हम कर सकते हैं बिकॉज वी हैव 50 रूम ऑलरेडी स्टार्टेड इन बंगारम दैट ऑपरेट बाय ताज सिलेक्शन. 100 room in nearby we are launching. So 100 room, then after again 100 room we are launching, depend upon our occupancy response. So as to fixed cost we can avoid. तो उसके बेस पर हम 250 रूम वहाँ कर रहे हैं. So apart from room revenue, we are going to get a various conference, exhibitions, as well as government of India, different state government is interested for conference, as well as business program of entire India's corporate team. So many things is going to happen that place. So it's a beyond room and beyond ARR income. Same way Adalaj. Adalaj we have no only 10 rooms. That's to host our theme-based destination. वहाँ मेरे को रूम थोड़े पाउडर रूम है, जो भी गेस्ट आते हैं तो 2-4 रूम चाहिए उसके हिसाब से. अदरवाइज एंटायर वेन्यू is a thematic wow as well as thematic Jal Tarang. If you see the photo, it's a natural stone heritage made after again 500 years. 500 years के पहले ये अडालज की स्टेप वेल बनी थी. उसके बाद अभी जो नई स्टेप वेल जो प्रवेग में बनाई है, दैट ऑल्सो फ्रॉम रियल स्टोन. और उसका जो इफेक्ट और उसका जो है वो पूरा कल्चरल प्रोग्राम, थीम प्रोग्राम, कॉर्पोरेट प्रोग्राम, वेडिंग, गरबा, 1159 गरबा जस्ट वी हैव लॉन्चेड on the first day of Navratri. We get tremendous response. Some social media, it was highly published in Gandhinagar and Ahmedabad area, and more than 1 million likes and views we got and for that. वो जगह की जो लोग गए थे वो लोगों ने दिया मार्केटिंग. और उसके अलावा उसका जो एक्सपीरियंस था, तो नेक्स्ट ईयर उसकी बहुत कुछ बड़ा मार्केटिंग हुआ है हमारे उसकी वजह से. उसके अलावा अभी जो वेडिंग सीजन चालू हुई है, अभी जस्ट 14 नवंबर से हमारा वेडिंग बैक टू बैक बुकिंग हुआ है इस साल. तो ये पूरा अराउंड 20+ वेडिंग की इनकम भी वहाँ आएगी. लेकिन सिंस द प्रॉपर्टी स्टार्टेड वेरी 1-2 months बिफोर, नेक्स्ट ईयर की वेडिंग की काफी इंक्वायरी और इंटरेस्ट और बुकिंग आ रहा है. तो वी सी कि अडालज विल बी आउट परफॉर्मर्स फॉर अहमदाबाद एंड गांधीनगर थीम बेस्ड डेस्टिनेशन, स्पेशली फॉर कल्चर, म्यूजिक, फेस्टिवल एज वेल एज वेडिंग प्रोग्राम.
Thank you. Okay, sir. My last question, sir. Since I know हमारे पास 850 रूम के ऊपर हो गया है, ऑपरेशन स्टेज में है, we are expanding very rapidly. फर्स्ट हाफ सर को भी ग्रोथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है मुझे लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ मॉनसून, मे बी बिकॉज समथिंग विच वॉज नॉट इन योर हैंड. तो सर मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप सेकेंड हाफ को कैसे देख रहे हैं? व्हाट्स योर व्यू ऑन द सेकेंड हाफ? डू यू थिंक वी विल हैव अ गुड ग्रोथ इन सेकेंड हाफ? You can even see the historical data of our Praveg balance sheet. You always find Q1 and Q2 weak, Q3 and Q4 always beyond that. So because of this is a seasonal variation, and Q3, Q4 will be same like earlier trend. So इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं दिख रहा है. और जो आप रिजल्ट एक्सपेक्टेशन की जो बात करें, इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारा बंगारम इज लॉन्च which is not working this year from 15th May to around October. It was not working, so entire cost is on this balance sheet. Number 2, exhibition event management team we have rebuilt to capture again after 2 years all that portfolio I want to recover, which we have lost due to these experiences, hospitality development जो करना था. So सारी टीम जो डेवलपमेंट में डिवीजन में गई थी ट्रांसफर, तो वो टीम को हम वापस लाए, प्लस नई एग्जीबिशन टीम हम खड़ी कर रहे हैं. सीईओ इज ऑल्सो अपॉइंटेड, एंड उसकी वजह से हमारा बिजनेस अब स्टार्ट हुआ है लेना, मतलब अवार्ड होना. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड बिजनेस फ्रॉम इवेंट एग्जीबिशन इन दिस H2 ऑल्सो. सो लास्ट ईयर इट वॉज ऑलमोस्ट नील. यू विल फाइंड इन गुड वॉल्यूम, सो यू विल satisfied after that result. I can say like that. Thank you, sir. Thank you very much and all the best. Thank you. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask a question. The next question comes from the line of Pratik Patel from 50 Millionaires. Please go ahead. सर मेरा क्वेश्चन है कि जो आपका ये थीनाकारा का जो रिसोर्ट आने वाला है, तो वो कब तक स्टार्ट हो सकता है? एंड बांगाराम में कैसा रिस्पांस अभी तक हमें मिला है एज अ ऑक्यूपेंसी, या जो ये सीजन का जो बुकिंग होगा? तो पहला मेरा ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा. सो आई वांट टू नो अबाउट थीनाकारा एंड बांगाराम. See, Bangaram resort is already started operation in this October month, and initial October-November month is a normal, but we are expecting December, January, February, March outstanding, and we have good amount of inquiry which is came, as well as we have started city-wise targeting various cities for the Bangaram and Theenakara business. So Bangaram का काफी अच्छा response है. As you know, this is a green field or grey area which we have started. Now publicity is started, and in Bangaram extraordinary response we are expecting. And Theenakara we are starting in very near timeline and make its announcement in very near future. नहीं सर, any idea within 3 months or 6 months थीनाकारा का लॉन्च होगा? 1 month. 1 month, okay. One or you can allow us 15 days plus minus, okay? So we can get the benefit of these next few months season yes. Because जैसे लक्षद्वीप में जैसे सीजन रहता है मार्च तक, तो उसका क्या बेनिफिट हम ले पाएंगे एज अ प्रवेश? मई 15 तक रहता है और मई 15 तक चालू रहेगा. बट मई थोड़ा वीक रहता है. नॉर्मली नवंबर से अप्रैल अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ क्या बोलते हैं डॉल्फिन भी आती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में. तो काफी कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं. और मैं आपको एक बताना चाहूंगा, आप सब इन्वेस्टर और एनालिस्ट टीम को बताना चाहूंगा कि बंगारम में Bangaram is the beauty of India, that you all know. That's no problem. But the Bangaram having a problem of various logistics and public का awareness of in Indian mainland, so ये सारी जो चीज है, तो एक आध साल मेरे को टाइम देना पड़ेगा. बट जैसे गेस्ट आते हैं और उसको देख के फिर वहाँ जाते हैं मेनलैंड पे,
तो एक माउथ पब्लिसिटी का जो फैक्टर है वो नेक्स्ट सीजन में आपको बहुत कुछ बड़ा देखना मिलेगा, जो आउट ऑफ थिंक होगा, ऐसा हमारा टोटल टीम का मानना है। ओके, तो सर बांगर में इफ यू कैन शेयर नंबर्स, ऑक्यूपेंसी अभी एवरेज कितना अभी तक आपको लग रहा है जो बुकिंग है उसके अकॉर्डिंग? अक्टूबर ताज सिलेक्शन इज ऑपरेटिंग देयर. I have to tell Bijal then, can you share anything about October data? October and November? So October, the occupancy level was approximately 25 to 30%. Yes. Basically, the weather was impacted. Weather was very rainy. Even cyclone was there in October. Okay. एंड सर मैंने थोड़े रिव्यूज देखे थे लाइक बांगाराम के, एंड जो फीडबैक मैंने देखा था ऑनलाइन, तो लाइक सम पीपल आर डिमांडिंग मे बी नॉन वेज, सो डू वी हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन वेज? बिकॉज एज अ प्राइवेट वी डोंट सर्व लाइक एज अ हियर, राइट, दैट वी सर्व ओनली वेजिटेरियन. I would like to tell and focus about it. Praveg is a pure veg restaurant, pure veg vegetarian company, so we are not providing. But Taj Selection, other than our 50 rooms, adjoining government property is there. There are full non-veg facilities there, which is already managed by the Taj Group, and it's in books of the Taj. They are sharing their profit and whatever it may be with the government. We have nothing to do with that. But in our 50 rooms and our services, we are not providing non-veg. Yeah. On our books. And do you think, sir, I think next 1 year, like as we have invested a lot money in Lakshadweep, तो लग रहा है कि लाइक प्राइवेट का जो आगे का ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत अच्छा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग बॉटम लाइन? डेफिनेटली। वो आपको, मैं जो भी कॉन कॉल में है सबको मैं ऐसा चाहूंगा कि सीजन में एक बार जाके आए, फिर आप अपना रिव्यू दे नेक्स्ट कॉन कॉल में. ओके ओके ओके. एंड सर एनी गाइडेंस फॉर दिस ईयर इफ यू कैन शेयर? मैं आपको एक चीज बोला है, गाइडेंस में एक ही चीज मैं बोलता हूँ कि H1 और H2 में जो फर्क रहता है is a historical with the Praveg. You can analyze it. Besides that, what we are progressing is in exhibition event line. That entire surplus will be in addition to the last year trend, as well as advertisement. Both will be the trending, which was almost very negligible in last 25. Last 2 quarters of 25. This last 2 quarters, you will find advertisement and exhibition business on good scale. Besides, hospitality business incremental due to this our season. 3rd and 4th quarter is our season. So that वो proportion में तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये 2 चीजें एडिशन होने वाली है, तो उसकी वजह से आपको देखने मिलेगा अच्छा गाइडेंस. मतलब ये जो क्वार्टर हाफ 1 है उससे हाफ 2 काफी अच्छा मिलेगा आपको देखने. नहीं वो तो सर हमेशा रहता है, हमारा H2 हमेशा बेटर रहता है, बट इस टाइम लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, लाइक लास्ट ईयर का H2 से लाइक एनी एक्सपेक्टेशन फॉर अस? लास्ट ईयर जो भी टर्नओवर था उससे सेम प्रोपोर्शन में टर्नओवर जो क्वार्टर 1 में क्वार्टर 2 में बढ़ा है वही टर्नओवर टॉप लाइन उसमें बढ़ेगी, इतना मैं बोल सकता हूँ. प्लस एग्जीबिशन का बिजनेस इसमें आएगा. मैं आपको इसीलिए बताने के लिए एग्जैक्टली फिगर नहीं दे रहा, उसका एक रीजन है. एग्जीबिशन इवेंट के जो वो total business is on government. So it depends how many tenders or exhibitions or events came into मतलब प्लेस होती है, तो उसके बेस पे हम टेंडरिंग करते हैं. कई बार गवर्नमेंट का काफी अच्छा बिजनेस आता है, तो इसमें कितना शेयर हम ले पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड है. बट मैं इतना बोलता हूँ कि लास्ट ईयर कुछ नहीं था, उसकी जगह हमने इस बार अराउंड 10 करोड़ का बिजनेस, 8 से 10 करोड़ का बिजनेस यही महीने में किया है, 2 महीने में, लास्ट 2 मंथ में. अभी तो बड़ी सीजन आने वाली है जो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक आएगी. तो मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि वो बिजनेस जो जीरो था लास्ट ईयर वो पूरा इधर ग्रो करेगा, पूरा रिकवर करेंगे. तो ओके. एंड सर एनी कमेंट ऑन वाइट रन? White Run is good, and we are almost in a mode of expansion there also, and you find some exciting news.
क्योंकि मैं प्रवेग के बोर्ड नहीं देख रहा हूँ, लल्लू जी सन्स की जो है उनके बोर्ड बहुत देख रहा हूँ, तो मैंने बोला इस बार हमारा मार्केटिंग कम क्यों है रिगार्डिंग वाइट मार्केटिंग विजय जैन, यू आंसर इट. मार्केटिंग क्यों कम है? So basically for Praveg White Run Resorts, what we felt is that we don't require marketing. Rather than doing the hoardings and all, we do our marketing expenses on the social media side, which gives us the better results. So we are more focused on the digital marketing side. Okay, thank you. And sir, अच्छा एडवर्टाइजिंग चल रहा है लक्षद्वीप का. I am seeing around Ahmedabad. So thank you and wish you best of luck. Thank you. The next question comes from the line of Kailash from Sequel Securities. Please go ahead. सर नमस्कार सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक एनी चांस ऑफ मार्जिन इम्प्रूवमेंट. मैं ऐसा लाइक बैलेंस शीट जब भी देखता हूँ जब मार्जिन 30%, 20%, 50% है, बट लाइक कपल ऑफ क्वार्टर लास्ट में लाइक मार्जिन कम होती जा रही है सर. एनी आप उसके ऊपर लाइक उसके ऊपर हमें गाइड कर सकते हैं? हेलो. And Javai, that is very minor share we are giving to landlord. बाकी के जो सारे रिसोर्ट और रेंटिंग बेस पे है, रेंट में सीजन नहीं देखी जाती है. क्वार्टर 3 में भी सेम रेंट है, क्वार्टर 2 में भी है, 1 में भी है. दूसरा नंबर का रीजन, लास्ट ईयर बंगारम नहीं था. इस एक क्वार्टर 2 क्वार्टर जो था फर्स्ट ईयर ऑफ बंगारम ऑफ सीजन था, जहाँ 15 में से ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर तक बिजनेस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वहाँ नो वॉइस परमिशन. मतलब वहाँ हम चालू नहीं रख सकते, आइलैंड है अलग से, सेपरेट टापू है, तो वहाँ हम काम नहीं कर सकते, बिजनेस मतलब चालू नहीं रहता है. तो उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो आई है. तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन पॉइंट है वो हमारा एग्जीबिशन इवेंट डेवलपमेंट जो डिवीजन में चला गया था, उसकी हमने टीम पूरी क्वार्टर 2 में नहीं खड़ी की है, और प्लस एडिशन ओवरहेड उसमें भी हुए, सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई है, तो काफी कुछ ओवरहेड करने पड़ते हैं टू लॉन्च द एग्जीबिशन इवेंट्स का जो बिजनेस है उसमें. तो उसके लिए उसकी भी कॉस्ट हमारे इसके पर आई है. कुल मिला के अभी जो प्रवेग की जो 2 मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो हॉस्पिटैलिटी है और सेकंड नंबर की एडवर्टाइजमेंट है. तो हॉस्पिटैलिटी का जो इनकम आए वो सारे ओवरहेड जो लगे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रेंट वाला डिफरेंस, बिजनेस का डिफरेंस के हिसाब से रेंट का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है कॉस्ट में, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट में. तीसरा एग्जीबिशन इवेंट की टीम खड़ी करना. चौथा ऑलरेडी हमने बोला है आपको कि हम फोकस कर रहे हैं सर्विस एंड सर्विस ऑफ द कस्टमर, रेटिंग ऑफ द कस्टमर. लाइक अ 5-star प्रॉपर्टी वी हैव टू गिव द बेस्ट सर्विस. वेयर एवर देयर इज एनी लैक्यूना वी कांट रन ऑन दैट मोड. तो उसके हिसाब से पूरा टीम जो है, जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि 1.5 साल पहले हमारी 100 लोगों की इन हाउस टीम थी. फूड एंड बेवरेज इज वॉट आउटसोर्स, हाउस कीपिंग वॉज आउटसोर्स. नाउ the team from 100 is become 1500 employee team within 1.5 year. So सीजन हो या ऑफ सीजन हो, अगर आउटसोर्स फूड एंड बेवरेजेस, आउटसोर्स हॉस्पिटैलिटी हाउसकीपिंग टीम है, उसको मैं मतलब फायर कर सकता हूँ, उसको मैं वो समय में कम कर सकता हूँ. लेकिन जहाँ इन हाउस टीम है वो मेरे को रिटेन करनी पड़ती है, और इन हाउस टीम रिटेन करने का फायदा एक ही है, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ट्रेन टीम होती है, हमारा एसओपी के हिसाब से काम करती है फील्ड पे, तो वो एक हमारी कॉस्ट है ड्यू टू दिस सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो बेस्ट रेटिंग होता है रिव्यू. आप हमारी ट्रिप एडवाइजरी में जाइए, दमन की प्रॉपर्टी हमारी, दमन की सारी प्रॉपर्टी हमारी ट्रिप एडवाइजरी ऑलमोस्ट नंबर 1 है. दमन में भी ऐसा है सेम स्टेटस. आपको अहमदाबाद की प्रॉपर्टी हमारी देखिए, तो सब जगह आपको जो रेटिंग मिल रहा है उसका रीजन एक ही है कि पूरा डेडिकेटेड टीम है. जैसे मैं उसको आउटसोर्स करूंगा, मैं 5 से 7% ग्रो कर मतलब प्रॉफिट सेव कर सकता हूं, बट नॉट इट विल बी एट कॉस्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अगर मेरे को कंपनी को एक अच्छी एक्सपीरियंस हॉस्पिटैलिटी के सेगमेंट में डिप्लॉय करना है, इंडिया में उसको और अफ्रीका में आगे ले जाना है, तो मेरे को सर्विस विल बी द प्राइम फोकस. बैलेंस शीट इज ऑलमोस्ट is utmost important. I am not deny that, but in longer run, I will convert that experience to balance it. अच्छा सर,
सर मेरा एक और क्वेश्चन था सर, जैसा प्रावेग का स्टॉक 1200 से 300 रुपये आ गया सर आज, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे सर आप? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो, प्रावेग इज फॉलोइंग 100% corporate governance and compliances. Even before Diwali, income tax surge also came to the Praveg, and we have declared, we have filed in the exchange that they found nothing any objectionable, nothing is happened. Why? Because of our corporate and accounting governance. Number one. Number two, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था जो बताइए, प्राइस वाला? ओके, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो भी हमारे एनालिस्ट फोन पे हैं, December 23 was the date when I think November or December 23, where our Honorable Prime Minister were visited Lakshmi. That time, Bangaram was awarded to Praveg, that you know well. Agati was awarded to Praveg. That time, if you see that time of Twitter, then after next month, यानी कि January 24, Ram Mandir temple was inaugurated. 2 property was awarded to the Praveg that time, and entire boom in social media lead to this market panic mode, and all the investors are on emotional ground. Maybe I can't comment on it, but they do the buying, and the investor base of the company was a manifold increase, and that was the reason for the 1,300. That is not exactly my opinion about any pricing. I am not making any opinion for pricing. We are following corporate governance, so this is not my subject. But whatever, as a layman, I studied it. Everybody was behind Twitter and social media. They are Lakshdeep and that, and that's why the price was super. Then after, obviously, कोई भी चीज अप होती है तो उसको करेक्टिव इफेक्ट आनी है, और इसमें भी हो सकता है ड्यू टू टेम्पररी फिनोमेना। ये मैंने आपको बताया, प्रवेग का पहला फोकस था 2 रिसोर्ट से हमने 18 रिसोर्ट ऑपरेशनलाइज करने का था। देयर वाज some query also at that time, if we see our earlier con call, कि आप कैसे 1.5 साल में 18 रिसोर्ट ऑपरेशनलाइज कर सकेंगे, हमने करके दिखाया। उसके बाद एडवर्टाइजिंग कंपनी लास्ट ईयर हमने एक्वायर की, तो इसमें भी 32 करोड़ का टर्नओवर था। अभी आप हाफ ईयरली 1 में आप देखो 23 या 24 करोड़ का टर्नओवर आधे साल में हमने पूरा कर लिया लास्ट ईयर का। तो इस साल इसमें भी आपको H2 में आपको वो देखने मिलेगा। तो कुल मिला के प्रवेग प्राइस मार्केट को हमारे को लेना देना नहीं है, मेरे को देना है परफॉर्मेंस। डेफिनेटली आई डू एक्सेप्ट कि आपका एक्सपेक्टेशन में भी नहीं पूरा हुआ होगा ड्यू टू मैनी रीजन आई एक्सप्लेन, और हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी कि अभी ऑपरेशनलाइज हुआ है, अभी हम दूसरे मॉडल पे, इन्वेस्टर मॉडल पे भी डेवलपमेंट का प्लान चल रहा है। हमारा दूसरा भी हॉस्पिटैलिटी कंपनी के लिए भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ इंक्वायरियां हैं, तो वो हम उसको रिगेन कर रहे हैं, नया एक्सपेंशन में डाल रहे हैं। हमारा एग्जीबिशन इवेंट वाला जो बिजनेस जो 2023 के पहले जो हमारा 50-100 करोड़ का था, 50 करोड़ अबव, जो ऑलमोस्ट जीरो हो गया था, उसको मेरे को रिकवर करना है। ये सारी इफेक्ट आएगी, तो आपको एक कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। ट्रेडिशनल होटल कंपनी को आप एक बनाने के लिए जब से नींव रखी जाती है तो 4 साल बाद ऑपरेशनलाइज होती है। हमने 1.5-2 साल में करके आपको दिखाया है, अब हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशनलाइज अच्छी तरह करना, मार्जिन अच्छा लेना, एग्जीबिशन को रीगेन करना, नई होटल्स और एक्सपांशन इन्वेस्टर मॉडल पे करके भी कम कैपेक्स में अच्छी रूम इन्वेंटरी बढ़ाना, अच्छे एक्सपीरियंस देना, अच्छे थीम पार्क और एक्सपीरियंस बेस्ड कोई नए प्रस्ताव है गवर्नमेंट से वो करना, म्यूजियम में एक्सपांशन करना, काफी कुछ पोटेंशियल है। सो एज ए इन्वेस्टर I would say only one thing, you think about longer vision rather than shorter vision. The shorter vision people may be not satisfied that time, and they may have sold their portfolio during this period. So always any flight, even aircraft, when it take off, it consume more fuel. You understand this? And your company is not old company in hospitality. You have to give some time
to take off. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन सर, ये पेपर इश्यूज जो कैंसिल हुए सर कल के नोटिफिकेशन में, तो अब फंड्स तो नहीं आएंगे सर, लेकिन इनफ्लो नहीं आएगा, तो कंपनी के ग्रोथ पे कुछ इम्पैक्ट होगा सर क्या सर, लाइक फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए? और एडिशनली लाइक ये क्वार्टर में थोड़ा डेट भी ऐड हुआ सर, तो ये कैसा मैं देखूँ सर एज ए इन्वेस्टर? नो सी, जो आप वारंट की बात कर रहे हैं? जी सर. Yes, the warrant money is at 25% is forfeited, that you know, right? That's come to be a part of reserve without any debt, without any liability, number one. Number two, to that extent, you can fill up by the debt of the group company or from promoter or from banks if required for the growth. And we have reshifted our focus from in-house capex to investor capex model. You find we are trying, we are going various negotiation and then we get a good fruitful result whereby without company's investment we will grow our hotels, number of room as well as number of hotels in next year to come. सर ये क्वार्टर में जैसा डेट ऐड करिए सर. I'm sorry to interrupt, Kailash. Could you please rejoin the queue so that the other participants could ask their questions? Sure sir. Thank you. Jai Shri Krishna. Yeah. The next question comes from the line of Rushikesh Shah from Alchemy. Please go ahead. Rushikesh, please go ahead and unmute your line in case if you are on mute. Hello sir, am I audible now? Yes. Yes, sir, I wanted to ask you, as you have guided us that you should look at growth on H1 to H2 basis. तो अगर हम लोग अपने H1 में देखें तो ऑलमोस्ट 80 करोड़ का रेवेन्यू किया है, राइट? तो H2 यूजुअली H1 में 1/3 होता है और H2 में 2/3. तो ऐसा राइट है थिंकिंग कि वी शुड थिंक कि सेकेंड हाफ में 160 करोड़ जैसा होगा? नहीं, आप समझो, मैंने आपको दो चीज बोला. एक तो आपने 160 वाला बोला, वो आप लास्ट ईयर के बेस पे बोला, प्लस एग्जीबिशन इवेंट प्लस एडवर्टाइजमेंट इस बार ऐड हुई है जो लास्ट ईयर नहीं थी. हाँ, राइट. तो अगर समझो H1 में ये मैं समझा, मतलब इट शुड बी मोर देन 160 करोड़ आपके हिसाब से एग्जीबिशन, और लास्ट ईयर से ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब हाँ, ग्रोथ बेसिस पे अच्छा होगा, राइट? ग्रोथ बेसिस तो आपको देख रहे हैं, जो क्वार्टर 1 में ग्रोथ है वही ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, बस वही मैं बोलता हूँ आपको. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, अगर H1 में देखें तो हम लोग के ऑपरेटिंग एक्सपेंस 66 करोड़ से 77 के रेवेन्यू पे 66 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस था. तो H2 में कैसे प्ले आउट होगा, मतलब कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑपरेशनल हुए हैं प्लस हम लोग के सीजनल होते हैं वो आते हैं, तो हाउ शुड वी लुक एट दैट? मैं आपको बताऊं, देखो हर हॉस्पिटैलिटी कंपनी में फिक्स कॉस्ट होता है. सीजन ऑफ सीजन का फर्क ये है, ऑफ सीजन जब हमारी सीजन में जैसे कि क्वार्टर 2, तो ऑटोमेटिकली हमारा एबिडिटा सीधा हिट होगा. अभी जैसे सेल्स वॉल्यूम जो बढ़ेगा इसमें 80% कंट्रीब्यूट करेगा प्रॉफिट को, क्योंकि मेरे को रेंट नहीं भरना है एडिशनल, मेरे को वहाँ कुछ कंजप्शन नहीं करना है, जो भी करना है F&B में थोड़ा बहुत खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बहुत खर्चा होता है, स्टाफ भी वही है, एम्प्लॉय भी वही है. तो अभी जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होता है F2 में, वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मैं बोल सकता हूँ 75, वो इंक्रीमेंटल की मैं बात, प्लीज अंडरस्टैंड दिस माय वर्ड, 75% या 70% सीधा मार्जिन इसमें ऐड हो जाता है नए एडिशनल बिजनेस का, क्योंकि जो बेसिक बॉटम लाइन ब्रेक इवन है वो तो हम निकाल चुके हैं. राइट, समझा. मतलब 25% और इसमें ऐड होता है अपने कॉस्ट में, बाकी 75% ऑफ इंक्रीमेंटल इज योर डायरेक्टली इनटू योर मार्जिन. दूसरी मैं आपको बात बताना वो भी चाहूंगा सब हमारे टीम को, एनालिस्ट और इन्वेस्टर टीम को, कि इस साल जो 18 जो रिसोर्ट्स है इसमें अराउंड 50% रिसोर्ट लास्ट 1 ईयर में ऑपरेट हुए हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. तो कोई भी
पहले दिन रिसोर्स प्रॉफिट में नहीं आ जाता है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो यू हैव टू गिव 1 year 2 years, थोड़ा टाइम. लक्षद्वीप में भी आपको टाइम देना पड़ेगा कि एक आज लॉन्च किया तो आप एक्सपेक्ट करेंगे सीधा 80% 70% ऑक्यूपेंसी हो जाए, वो नहीं होती है. सेकंड ईयर में थोड़ी बढ़ती है, थर्ड ईयर में बढ़ती है, बट यू कैन एक्सपेक्ट. मेरा जो लॉन्गर विजन है कि 7-8 साल की जो प्रॉपर्टी चलती है तो एवरेज 40% EBITDA डिलीवर करनी चाहिए. वो मेरी एक्सपेक्टेशन है. तो पहले साल में हो सकता है 10% करे, 5% करे, दूसरे साल में 15-20 करे. ऐसा उसके डिपेंड अपॉन ट्रेंडिंग, डिपेंड अपॉन लोकेशन, डिपेंड अपॉन पब्लिक रिस्पॉन्स. मैनी थिंग इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. सर क्वेश्चन मेरा ये था, Rishikesh, you're breaking up. Rishikesh, we are not able to hear you. You're breaking up. Hello. Yes, please go ahead, Rishikesh. Yeah, sir, I wanted to ask you, अपना H1 में capex कितना हुआ है? सारा देखो मैं आपको बताना चाहूँगा. ऑलमोस्ट कैपेक्स इज डन. जो थिनाकारा नॉर्थ का भी ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर में भी पूरा हो जाएगा. तो कुल मिला के कैपेक्स डीजल में यू कैन टेल अबाउट दिस. शायद ये बैलेंस शीट फाइल किया इसमें होगा Q2 का. हेलो. ये फिगर तो आपको प्रेजेंटेशन में भी मिल जाएगी. हाँ, ओके सर, ये ठीक है, ये मैं देख लूँगा फाइनेंशियल्स में. वापस मुझे क्लैरिटी चाहिए था. जो आपने ग्रोथ बोला वो आपने Q1 to Q1 कंपेयर करने को बोला. वो मतलब हाउ शुड बी कंपेयर Q1 to Q1 लास्ट ईयर दिस ईयर. हाँ, मतलब वो जो ग्रोथ हुआ होगा Q1 to Q1, राइट? Q1 to दिस ईयर Q1. ओके, उतना उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा. मोर देन दैट विल ग्रो एज पर यू. हाँ, हो रहा है. देखो आप Q1 देखो 24, 25, Q1, Q2, Q3, Q4 आपको मिलेगा. वही मेरा बोलना था. और इसमें प्लस करना है एग्जीबिशन एडवर्टाइजिंग जो बिजनेस नहीं था लास्ट ईयर, जहाँ नहीं था वहाँ. राइट. हाँ, ओके, अंडरस्टूड. थैंक यू सर. Diesel Ben, that announcement is done. Let me just check. Mukesh is public this? Yeah, please check me. Let me check. Just confirming. Any query, please. Next question, please. Yeah, it's done. Huh? It's done. It's done. Yes. It's done, Diesel Ben? Yes. I would like to tell my on call all investor analysts, just we have filed in exchange additional inventory of 252 bed in Kutch, which is awarded to us for 35 years. It is a good, amazing moment for the company's acquisition. We have published in exchange, so I can announce now that 252 bed is equivalent to, you can say, 126 room. Besides 76 room which we already hold, so total inventory will be around 202 room in Kutch. In this season there will be 76. Next season it will be 202 room, including this I told about this dormitory room. So we have major expansion coming in Kutch next season. Thank you. Now question. Thank you. The next question comes from the line of Rahul Dhruv from Pegasus Growth. Please go ahead. Yeah, hi. सर मेरे को आपसे ये पूछना था कि अभी जो वारंट फोरफीट हो चुके हैं उसके अगर जो पैसे नहीं आ रहे हैं और आपने अपने प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है कि आप और 500 रूम ऐड कर रहे हैं अगले 1 साल में, जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो महाराष्ट्र की वगैरह, तो उसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली लेट्स अज्यूम मैं अगर जो 50 लाख पर की लूं पर रूम लूं तो आपको एटलीस्ट 250 करोड़ का कैपेक्स है. तो सर वो पैसे कहाँ से आएंगे? आपका डेट कितना बढ़ेगा इसकी वजह से? मैं आपको बताना चाहूँगा.
एक तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूं, अभी जस्ट मैंने अनाउंस किया 126 रूम जो आ रहे हैं कच्छ में। हाँ जी। आउट ऑफ 500 में एक एक चीज आपको ब्रीफ कर लूं। 500 में से 126 रूम जो आ रहे हैं वो मेरी जो प्रॉपर्टी थी, आपको शायद पता है काशी के वाराणसी मेरी टेंट सिटी थी, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कच्छ में आ रहा है। सो दिस इज द गुड थिंग ऑफ प्रवेग कि एक होटल्स बंद हो चुकी है, तो वहाँ उठा के पूरा रिसोर्ट हम इधर 126 रूम में इनकम जनरेटिंग कर लेंगे। तो हमारी जो 2 साल ये प्रॉपर्टी पड़ी रही थी वो अभी यूज करने जाएंगे नेक्स्ट सीजन से कच्छ में। तो आप समझ सकते हैं उसका कैपेक्स बहुत मिनिमम होगा। 2-5 करोड़ रुपया 7 करोड़ रुपया मेरा चाहिए लगेगा, जो 126 रूम को खड़ा करेगा ड्यू टू इंस्टॉलेशन एंड ऑल दैट कॉस्ट, वॉट एवर फिनिशिंग करने के लिए जो चाहिए हो। तो 126 रूम तो हमारा वाराणसी से बन गया। दूसरा जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हमारा इन्वेस्टर मॉडल पे हमारा काम चल रहा है, इसमें इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करेंगे and we will be the party, we will develop that property as per vision of the project. After development, we will operate it also. So development में भी मार्जिन रहेगा और ऑपरेशन में भी मार्जिन रहेगा, और इन्वेस्टर को फायदा ये है कि लो कैपेक्स जो प्रोजेक्ट का मॉडल है उसके बेस पे उसका रिसोर्स बन जाएगा उसका खुद की बुक्स पे। तो वो तो सर मैं कच्छ का तो समझ गया सर कि इंक्रीमेंटल कैपेक्स है तो कमी होगा। मैं आपकी जो प्रेजेंटेशन में जो अदर प्रॉपर्टीज है यानी उदयपुर, रतनपुर, किहिम, काशी और कनककारा, बंगारम, ये सब का जो आपने लिखा हुआ है 495 रूम्स, उसका आई कैन अज्यूम कि आपका CWIP में अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ है, बट बैलेंस जो पैसा है डालना है आपको इन सब में, वो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? वही मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। 126 रूम का रिकंसिलेशन दे दिया। थिनाकारा नॉर्थ इज रेडी, नो एडिशनल कैपेक्स नीडेड, ऑलरेडी डन फ्रॉम अवर एग्जिस्टिंग कैपेक्स। सो थिनाकारा नॉर्थ इज ओके, 100 रूम निकाल दीजिए, 126 100 रूम। साउथ वी हैव बिल्ड अराउंड 80% देयर ऑल्सो, वी हैव डन ऑलरेडी कैपेक्स फॉर 80%। सो आप समझ सकते हैं 20 रूम का जो खर्चा है 10 करोड़ का, 10-15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ एडिशनल लगेगा। तो 15, 5 और 20 करोड़ रुपए में हमारा 326 रूम बन जाएगा 15 करोड़ से 20 करोड़ से। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? फिर मैं आपको बताऊं ये बॉम्बे में किहिम कासिद में CRZ क्लियरेंस का एक इश्यू चल रहा है। जैसे ही क्लियर होगा तो वहाँ भी इन्वेस्टर, अफ्रीका में भी इन्वेस्टर मॉड्यूल्स के लिए लोग इंटरेस्टेड है। वी आर वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन। सो इन्वेस्टर प्लस प्रवेग will do the joint development activity for their future expansion. So as to we can minimize our capex. If it's having a good response from any capex side with the private, in that case we will think over such a extraordinary property required to acquire on our own. But wherever possible, now we are expanding on investor model also. Okay. तो सर ये इन्वेस्टर मॉडल कैसे चलेगा, यानी आप कितना पैसा डालेंगे, वो कितना पैसा डालेंगे, कुछ बेसिक आइडिया मिल सकता है? आई कैन गिव इट 5-6 मॉडल। नंबर 1 लैंड इन्वेस्टर का है, डेवलपमेंट प्रवेग कर रहा है, ऑपरेट प्रवेग कर रहा है, इन दैट केस वी आर शेयरिंग लैंड इन। सेकंड 2 लैंड उसका है, डेवलपमेंट का कॉस्ट इन्वेस्टर डालता है, डेवलप इज डन बाय द प्रवेग। एक केस में प्रवेग अपना मार्जिन लेके उसका डेवलपमेंट जो कैपेक्स है इसमें भी हमारा मार्जिन होगा रीजनेबल, और वो मार्जिन के हिसाब से रिसोर्स बनेगा, उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये सेकंड मॉड्यूल है। थर्ड मॉड्यूल इज PPP मॉड्यूल विच गवर्नमेंट वी आर बिडिंग, वी डेवलप इट, वी डू अवर कैपेक्स एंड उसका हम रेवेन्यू लेते हैं। तो चौथा मॉड्यूल है किसी की रेडी होटल्स है, अच्छी है, मेरे एक्सपीरियंस में जाती है और वो मेरे को रेडीमेड देना चाहता है, तो उसको एंड करके हम उसको भी ले सकते हैं। तो 4-5 मॉड्यूल ऐसे हमारे जो डेवलप होने जा रहे हैं उसके हिसाब से। So let me put it the other way around. आपने फर्स्ट क्वार्टर में 41 करोड़ का कैपेक्स किया हुआ है, तो सेकंड हाफ में अप्रोक्सीमेटली कितना कैपेक्स होगा? सेकंड हाफ में है, मैंने बोला आपको कि 5 ये भी जो थिनाकारा नॉर्थ का जो कैपेक्स हुआ है 10 करोड़ रुपया हमने नया एडिशनल डाल के अभी ऑलमोस्ट इन एग्जीक्यूशन स्टेज पे है, तो ऑलमोस्ट 10-15 करोड़ का होगा बाकी कैपेक्स, और वो पूरा हो गया फॉर एन काइंड इन्फॉर्मेशन।
और आप लोन और इससे ज्यादा लेंगे या नहीं? आप ये जो बोल रहे हैं वारंट का पैसा आएगा तो फ्यूचर एक्सपेंशन में यूटिलाइज होने वाला था, जिसमें जैसे कि 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट हमारी साउथ में 10-15 करोड़ की, जैसे कि अलीबाग में है, उसके लिए यूज होने वाला था, लेकिन हम उसको मैनेज करेंगे हमारी ओर से। हो सकता है प्रमोटर से भी आए, हो सकता है हमारे अच्छे इन्वेस्टर से भी। यानी आप लोन अभी नहीं लेंगे, राइट सर? अभी इससे ज्यादा लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? इट्स डिपेंड, कोई अपॉर्चुनिटी है और चाहिए तो वर्किंग में चाहिए तो उसके हिसाब से। बाकी यू सो द लोन ऑलमोस्ट Praveg has taken is from the group company, number one. There is no other loan except some BG and CC limits, very 5-10 crore. There is a 500 crore network company having a 10-15 crore limit is only for the management of bank guarantee or government business, that you know. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. The next question comes from the line of Vrushank Patil, an individual investor. Please go ahead. Hello. Am I audible? Yes. Yeah, Vrushank. Yeah, my question was on the trade receivables appearing on the balance sheet. So what I see is 69 crores worth of trade receivable is there, and our revenue for the half year is around 76 crores. So if you could just throw some light on what kind of because I understand that this would be most of the receivables would be from the resort bookings, where there won't be any substantial credit period. So what this receivable comprises of trade receivables? There is a trade receivable from government, exhibitions, as well as corporate conference, corporate bookings, जहाँ मेरे को उनके साथ flexibility होती है. So generally, what is the credit period we are giving over there? देखो, कई बार रूटीन बिजनेस आता है तो वहाँ मेरे को जो एक नया बिजनेस आया, उसके बाद नया ऐड हुआ, पेमेंट आया, तो साइकिल जैसा होता है. और जहाँ सिंगल बिजनेस है, जहाँ नॉन ग्रुप है, जहाँ हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा क्रेडिट देके भी हम काम करते हैं. ओके सर. और गवर्नमेंट में कई बार प्रोसेसिंग टाइम लगता है, तो कई बार 1 साल भी लग जाता है. ओके, थैंक यू. गवर्नमेंट से रिकवर करना है, इसकी प्रोसेस होती है, गवर्नमेंट की अपने हिसाब से पेमेंट सिस्टम होती है, तो वो सारा ट्रेड रिसीवेबल में इकट्ठा होता है. Understood. Thank you. Thank you. The next question comes from the line of Mehul Panjwani from 40 Cents. Please go ahead. हेलो सर, थैंक यू सो मच. आपने बहुत विस्तार से काफी कुछ हमें बताया, which is ready to share anything about our company. You tell. Which is giving us a lot of confidence despite the loss reported. So sir, loss is you see the future of Praveg, not only the historical data, please. हाँ जी सर. सर, मुझे जानना था कि ये जो आपने बताया कि कुछ 11 करोड़ का एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू हुआ है. 13 करोड़. हाँ, सॉरी, 11 करोड़. 11 करोड़. हाँ, बोलिए. हाँ सर, वो नया सेगमेंट है या पहले से प्रवेग इसमें ऑलरेडी है? नहीं, मैं आपको बताऊं, प्रवेग का खुद की बुक्स पे एडवर्टाइजमेंट, इवेंट एग्जीबिशन का बिजनेस था. 2014 से हमने ऐड किया पहला कच्छ, 2018 में ऐड किया केवड़िया, 2022 में ऐड किया दीव. देन आफ्टर यू नो द जर्नी, राइट? सेम वे एडवर्टाइजिंग एंड इवेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस, बट वी हैव सेग्रीगेटेड बाय द स्ट्रेटेजी कि अभी हम एडवर्टाइज को अलग देख रहे हैं, एग्जीबिशन इवेंट्स को अलग देख रहे हैं. जो एडवर्टाइज को अलग देख रहे हैं, उसकी वजह से हमने एक एसपीवी जो एग्जिस्टिंग 20-25 साल के एक्सपीरियंस लोग थे, जो एमडी है प्रेजेंटली ऑफ अभिक और वेदांत के, मुकेश पटेल है, उसका सन है अभिक, इज ऑल्सो 32 ईयर्स गाय. तो जो एक्सपीरियंस टीम थी, उसकी कंपनी में हमने स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट करके 51% लिया. उसके बाद हमने गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसलमेर, गोवा, देन आफ्टर महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप है, रूरल सेगमेंट के, रेलवे के सर्टेन शायद है, एसटी के शायद. हाँ, तो
ये जो होर्डिंग नए होर्डिंग जो लगाने प्राइम लोकेशन पे उसका एक्सपेंशन चालू किया। तो लास्ट 1 जुलाई से हमने एक्वायर किया था, ये 1 जुलाई से हमारा 1 साल पूरा होता है। तो जुलाई अगस्त सितंबर में जो लास्ट ईयर 32 या 33 करोड़ टर्नओवर था, वो अभी यही हाफ ईयर में हमने 24 करोड़ कर दिया है। और इस साल आपको इसमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिलेगा। और नॉट ओनली फॉर द फाइनेंशियल साइड but also acquisition of the new advertising area, new advertising monopoly in certain cities, certain big metro cities also we are planning. So you find that development in that company, so you can specifically judge what profit is made by that company. Same way, exhibition events में जो प्राइवेट का पोर्टफोलियो जो हमने 2 साल लॉस किया है, 2 साल हमने काम नहीं किया है इसमें B2 डेवलपमेंट, उसको भी हम रीगेन करने जा रहे हैं। उसका भी आपको 2 अनाउंसमेंट तो एक्सचेंज पे फाइल किए हुए हैं जो नए अवार्ड हुए। अभी भी हमारी टीम एग्रेसिवली वर्क कर रही है, उसके CEO से लेकर पूरी टीम तैयार हो चुकी है। हम एग्रेसिवली बिडिंग चालू किया है। आपको वो भी एक क्वार्टर हाफ 2 में आपको अच्छा बिजनेस देखने मिलेगा। वी आर ऑप्टिमिस्टिक फॉर दैट। राइट सर, नाउ वी आर कॉन्फिडेंट सर। और एक क्वेश्चन जो अभी आपने अनाउंस किया, जो अभी विजल जी ने अभी बताया कि वो चालू में, हाँ बोलिए। हाँ तो सर वो रन ऑफ कच्छ का ही है या और कहीं दूसरे? सर अंदर ही हमारा जो 46 रूम और 30 भूंगा है, उसकी एग्जैक्टली एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी में 50,000 स्क्वायर मीटर लैंड अवॉर्डेड हुई है। और मैं आपको फिर से नोट करना चाहूंगा, आज तक प्रवेग ने 7 साल के देखे, 10 साल के टेंडर देखे, आपको ये अनाउंसमेंट 35 ईयर्स का है, यानी कि ऑलमोस्ट लॉन्गर टर्म प्रॉपर्टी कंपनी को मिली सच में। सर बट ये लालू जी सन्स के थ्रू है या ये अपने कोई मिली है? नहीं, हमारी है। अच्छा, प्राइवेट का ही अवार्ड है। आप देखो तो सर फाइल किया पूरा, गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दिया। अच्छा। और सर और एक चीज, तो अभी टोटल 18 रिसोर्ट हो गए हमारे, इज दैट राइट? आई थिंक सो, एग्जैक्टली 18 हुए हैं। अभी 2 अनाउंसमेंट स्टेज पे है। अच्छा, सो सर अभी मैं 18 रिसोर्ट की बात करूंगा। सो ये 18 रिसोर्ट में से कितने जो है रिसोर्ट वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और कितने अभी करेंगे, मतलब कितने बाकी हैं? मैं आपको बताऊं, 18 रिसोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है। 2 रिसोर्ट में ऑपरेशन का अनाउंसमेंट का में से एक नजदीक में आपको बोला है कॉन कॉल में, लक्षद्वीप का, वो आपको मिलेगा जनवरी तक। नहीं सर सॉरी, मैं अपना क्वेश्चन वापस रिफ्रेश करना चाहूंगा, मैंने गलत क्वेश्चन पूछा है। ये जो 18 रिसोर्ट आपने बोला ऑपरेशनल है, वो कितने रिसोर्ट इसमें से 1 साल ऑलरेडी हो चुका है ऑपरेशन? ऑलमोस्ट आप सीजनल निकाल दो तो 50-50। वही रीजन है कि आपको Q1 Q2 प्रेशर में लग रहा है। हाँ जी, कि इसमें प्रॉपर्टी 50% ऐसी है कि जो हमने मई महीने में, कोई जनवरी में, फरवरी में लॉन्च की है। हाँ जी। अच्छा, तो 50% ऑपरेशनल है फॉर 1 ईयर एंड 50% 1 साल। मैं आपको बताऊं, 18 में से 4 निकाल दो जो सीजनल है, 14 बची, इसमें से 7 न्यू है, 7 ओल्ड है। अच्छा, ऐसा अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ। आई हैव नॉट पेपर बट जस्ट एवरेज। तो क्योंकि नई जो प्रॉपर्टी है उसका मार्जिन दबा हुआ रहेगा 2 साल, आपको यू हैव टू बियर विद दैट टाइम। हाँ जी, बट वो 2 साल रुकना पड़ेगा, वो एक बात है। और बट अभी जो H2 के नंबर्स आएंगे उसमें काफी इम्प्रूवमेंट रहेगा, बिकॉज सारे रिसोर्ट्स सिंपल सिंपल रीजन है। आप जानते हैं लोग घूमने कब जाते हैं? मानसून में नहीं जाते हैं। हाँ, सब लोग विंटर में प्लान करेंगे। मेरा डी में लोग मई महीने में बहुत जाते हैं, अप्रैल मई में जाते हैं। 15 में से 30 सितंबर मेरा ऑलमोस्ट बहुत डाउन होता है बिजनेस। हाँ जी, और उसको रीजन एक ही जगह में कर सकता हूँ, वो एडवर्टाइजमेंट और एग्जीबिशन इवेंट मैनेजमेंट, और उसको हम रिकैप्चर कर रहे हैं। तो आई एम एश्योरिंग कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको Q1 और Q3 में, सॉरी H1 और H2 में मेजर जो ये आप बॉटम लाइन प्रेस देख रहे हैं वो शायद नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत बधाई एज वेल एज आपको ऑल द बेस्ट सर। Thank you so much. Thanks for all of your blessing to the company. Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I would now like to hand the conference over to Mr. Parth Acharya for the closing remarks.
Parth sir, please go ahead. Thank you everyone for joining the conference call of Pravik Limited. If you have any further queries, you can write us at research@greenadvisors.com. Once again, thank you everyone for joining the conference. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, on behalf of Kiran Advisors Private Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines. Thank you.